Hello dear students, today in this video study chapter 4 of class 9 and the book name is English RJ ICSC books. So without any delay we begin the class, that is chapter 4 articles. Now students, an article is used to show whether a noun refers to something particular or something general. In English we use three articles a, and the. Okay, so everybody is familiar with the word articles. We know that there are three types of article a, and the. A and these articles are called indefinite articles and the is called definite articles. Okay, student, what is the role of articles in English grammar? So, see, article is used to show whether a noun refers to something in particular or in general way. Okay, this is the work of an article. So, let us find what is definite and indefinite articles now. See, a and are known as indefinite articles. The is known as definite articles. Okay, indefinite articles a and an. What are the uses of these articles? Let us see. See, we use this article before countable noun in singular. Okay, it means the noun that is singular and countable. Before that, we use these articles a and a. See the example. Claire gave me a book on my birthday. So a book is an article. Okay, what is the noun? It is a noun that is singular in number and also a countable noun. In the same way, Mahi brought an ice cream from the shop. So an ice cream, this ice cream is a type of countable noun and a singular noun. Okay. A is used before the word that begin with the consonant sound. For example, a book, a horse, a suitcase, a university, and a European town. Okay? A is used before the words that begins with the consonant sound. Now see the students here. There are two things that is to be noted: a university and a European. Okay? European and university. Why? Because this U comes as a sound of consonant. So that is why we are not going to use an here. What should be used here? So article A is to be used with university and European. Clear, student? You both are you might be thinking that the word U and E is a type of vowel, but it sounds as a consonant sound. So that is why here we use A. Clear, student? Now, an is used before the word that begins with vowel. For example, an apple, elephant, an embroidered handkerchief, and or an MLA. Now, point to be noted, students. MLA. Now, this MLA is not started with the word A I O U. It means it is not started with any vowel, but it sounds like a vowel sound. MLA. M. So this M is sounds like a vowel sound, so that is why an is used before this. Clear, students? Now point number two, in the case of one and with the meaning of each, we use these articles how? Let us see. I'm reading a chapter a day. I am reading one chapter each day. Okay, where there is one sense and the meaning of one comes each, we use these articles. So it means A. Okay. The second point, they have promised to send me 500 rupees a month. Okay, it means they have promised to send me 500 rupees every or each month. Clear, students? So in the sense of one, we use these articles. Okay. Number three, with fraction prices, weights, measures, and speeds. We were running at a steady pace of 6 kilometers an hour. Okay. The price of onions is 40 rupees a kilo. You are supposed to drink 8 glasses of water a day. Okay. So where there are fractions, prices, weights, measures, and speeds, we use the indefinite article. It means a and an. Clear, students? Say, little and a little are used with uncountable nouns, while few and a few are used with
a countable noun. Here, little, the sense little, it means very small quantity of water. And what do you mean by a little? A little means that there are something at least. Okay, some quality is needed here when we use at a little. What about few and a few? A few, it means some of us, that is used with a countable noun, and few, it means not many of us. Okay, few and little are used in a negative sense and not many or not much sense. A few and a little are used in a positive sense and it means some. So students, the sense is very clear. So when we use few and little, it means the sense is negative or not many or it means not sense. And when we use a few or little, it means there are some positive sense and there are something that is to be used. Now let us study point number 4 with a certain number and expressions of quantity. Now see, Rishi waited for 100 days before foraging. When there is a certain number and expression of quantity, we use article a on and. Okay. So see, a special number, a certain number, 100 days. So before that a is used. Okay. The mountains have been watching over the land of 1,000 years. So that is also a certain number. That is why it is used a here. I brought a dozen apples and a couple of mangoes. ठीक है, dozen apple and a couple of mango. These are expressions of quality, quantity, and a certain number. I have a lot of homework to finish by Friday. Kiran has a few questions about the topic taught today. Okay. Now, point number 5. When referring to a person or a thing for the first time, किसी भी person और thing को जब भी हम first time use करते हैं, we use a and an. I met a boy in the park. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो noun है बच्चों, ये first time use हो रहा है, that is why a is used here. Mr. Gupta has been looking for you. ठीक है, oh Mr. Gupta, this is very new point for you. Mr. Gupta is a noun that is used for the first time in the sentence. That is why a is used here. Parth has written an article for the school magazine. Because so that article is used for the very first time in the sentence. Point number 6. With proper nouns when they are used as common noun. कोई भी proper noun जब किसी कॉमन नाउन की तरह से किसी सेंटेंस में यूज होता है, हम ए और एन को यूज करते हैं बच्चों. जैसे वी नीड शकुंतला देवी टू सॉल्व दिस सम, कहते हैं ना कि इस सॉल्व को इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक शकुंतला देवी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये शकुंतला देवी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, बट इस सेंटेंस में एक कॉमन नाउन की तरह से यूज़ किया गया. दैट इज़ वाई इस प्रॉपर नाउन के साथ हम यहाँ पे ए का यूज़ किए. ऑन ओनली मेसी कैन सॉल्व दिस टीम फॉर फ्रॉम लूसिंग. ठीक है, ये जो मेसी है प्रॉपर नाउन है बट ए को यूज़ किया गया बिकॉज दिस मेसी इज यूज एज अ कॉमन नाउन इन द सेंटेंस हियर. क्वेश्चन नंबर 7. किसी भी एक्सप्लेनेशन के साथ हम ए और एन को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग पेंटिंग. So what an amazing painting. This sentence is given in an exclamatory formation. Okay, student. So an amazing painting. It is a type of a countable singular countable noun. Okay, students. It is sorry. It is such a shame. Okay, such a shame. It is a shame. That is what a countable noun. So it is used before these two types of examples. Now the eighth point is saying that when referring to a person's profession, किसी भी person के profession को use करते वक्त हम use करते हैं she is a software developer. तो वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो हमने ए को यूज़ किया यहाँ पे. ठीक है, ही इज़ अ मॉडल एंड अ पेंटर. सी, मॉडल एंड अ पेंटर, दीज आर द प्रोफेशन. दैट इज वाई ए एंड एन इज यूज्ड when we use or when we referring to a person's profession. So that we were talking about a and an, that was the indefinite article. Now we are going to proceed the class with a definite article, that is what the. The is used in the following situation. Number 1, to refer to a particular person or a thing. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर करने के लिए. जैसे द बस आई टेक एवरी डे इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग ऑन द सेम रूट. ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को जब हम रेफर करते हैं तो द बस, ये पर्टिकुलर वो बस है जो आई टेक एवरी डे. ठीक है, जो मैं एवरी डे टेक करता हूँ, जो मैं हर दिन लेता हूँ, वो एक पर्टिकुलर बस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और वही सेम रूट.
ठीक है, we are talking about the same route and the same bus. These are the particular route, particular bus. That is why the is used here. Now the receptionist picked up her purse and put it inside the drawer. Talking about particular receptionist and talking about particular drawer. Clear? With the countable nouns in the singular and plural as well as uncountable nouns. Please bring the luggage inside. Countable nouns in the singular and plural as well as uncountable nouns. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल के सेंस में यूज कर सकते हैं. प्लीज ब्रिंग द लगेज इनसाइड. अब जो लगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों. ठीक है, और आई लाइक द बुक. अब यहाँ पे बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ आया. ठीक है, तो अभी आपने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आपने देखा इसका यूज. द वुमैन प्लेस्ड हर कैनवास ऑन द इसल. सो यहाँ पे ये जो इसल है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन. ठीक है. Question point number three. With the countable noun when the noun is used to present all things of a type. ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जब वो नाउन को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, कि किसी भी समूह या टाइप को वो एक साथ रिप्रेजेंट करे. जैसे द ऑर्का इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. यहाँ पे द ऑर्का को यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो ऑर्का है वो सिर्फ अपने आप की बात नहीं कर रहा है, बिकॉज हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल family, its whole type. Okay. Number two, the computer revolutionized technology as we knew it. यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो पर्टिकुलर ऑल कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा है कि जितने भी कंप्यूटर्स अब तक आए वो एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को लेकर आए. ठीक है. डू डू वी वांट टू गो द सिनेमा. अब यहाँ पे द सिनेमा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम किसी भी ये जो वर्ड सिनेमा है वो ऑल टाइप्स के सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है. हालांकि ये क्या है, दीज आर द नाउन. काउंटेबल नाउन है ना बच्चों, ये भी काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल. तो जब कोई काउंटेबल नाउन आता है और वो रिप्रेजेंट करता है पूरे अपने क्लास को, देन वी यूज आर्टिकल द. आगे बढ़ते हैं. When referring back to a person or thing, किसी पर्सन पे हम जब वापस पॉइंट आउट करते हैं, रिफरिंग बैक पॉइंट आउट करते हैं, तब इसका यूज करते हैं. पार्थ हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज. द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन आवर स्कूल मैगजीन. एंड का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल की यूज है, बट यहाँ पे दोबारा से उसी आर्टिकल की बात की गई है, तो हम लोग दोबारा से रिफरिंग कर रहे हैं द सेम आर्टिकल. दैट इज वाई यहाँ पे द का यूज किया गया है. पार्थ ने एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है हमारे स्कूल मैगजीन में. विद सुपरलेटिव, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है हम द का यूज करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी भी आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे आपको द का यूज करना पड़ेगा. जैसे पियानो है, सेलो. ठीक है, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी यूज द डेफिनिट आर्टिकल. वेयर देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग. वन ऑफ समथिंग का मतलब समझ लेते हैं. वन कैन सी द नॉर्दर्न लाइट फ्रॉम सर्टेन प्लेसेस इन नॉर्वे. पर्टिकुलर नॉर्दर्न फिनोमिना की बात किया जा रहा है, दैट इज वाई द का यूज नॉर्दर्न लाइट के साथ किया गया. द टोटल एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन. ठीक है, किसी भी हेवनली बॉडी के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द मून. ये जो हेवनली बॉडी है इसके साथ हम द का यूज करते हैं. द स्काई वॉज अ डिलाइट फुल शेड ऑफ पिंक दिस इवनिंग. तो द स्काई देखिए यूज किया गया है. फिर द राजस्थानी एक्सप्रेस, ये राजस्थानी एक्सप्रेस क्या, राजधानी सॉरी, जो राजधानी एक्सप्रेस विच इज अ टाइप ऑफ ट्रेन. तो इस ट्रेन के साथ हम यूज किए. अभी देखिए, द जेंटल विंड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ. नॉर्थ जो है वो कोऑर्डिनल डायरेक्शन है, तो नॉर्थ के लिए यूज किया गया है. द आल्प्स माउंटेन रेंज है. द गोदावरी रिवर है. द अटलांटिक ओशियन एंड सीज है. द मोनालिसा क्या है, दैट इज अ वेरी वेल नोन बुक एंड वर्क्स ऑफ आर्ट. एंड द कुतुब मीनार, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोनूमेंट. ठीक है. With adjectives used to present a class of people or when adjectives are used as a noun. जब एडजेक्टिव को हम किसी भी क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं बच्चों. ठीक है, या तो फिर वो एडजेक्टिव जब हम उसको एज ए नाउन यूज करते हैं. कैसे, द रिच गेट रिचर व्हाइल द पुअर गेट पुअरर. ये जो रिच है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिच है वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है कि वो पर्सन एक रिच है. ठीक है, तो ये जो रिच और जो पुअर,
रिच और जो पुअर एक क्लास को बता रहा है। रिच मैन, हालांकि ये रिच और ये जो पुअर है, दिस टू आर एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव तो है बट ये ऐसे नाउन यूज किया गया है कि जो भी रिच हैं वो और भी ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो पुअर हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। दोनों जहाँ पे द का यूज किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ डन अ lot for the unemployment. दिस गवर्नमेंट हैज़ डन लॉट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है जो एज अ नाउन यूज किया गया। 9 पॉइंट देखेंगे, द कंट्रीज एंड रीजन्स वेयर हुज नेम इंक्लूड अ कॉमन नाउन। वो कंट्रीज और वो रीजन्स जिनके नाम जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मिडिल ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। टेंस है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ फैमिली और अ पीपल और एज सपोज जब भी हम किसी फैमिली किसी पीपल को एक समूह में दिखाते हैं, द अनवर्स हैव इनवाइटेड अस टू डिनर, ठीक है, मतलब अनवर्स की जो फैमिली है वो हमें डिनर के लिए इनवाइट की गई है। ऐसे द इंग्लिश आर पर्टिकुलरली डिफरेंसिव अबाउट देयर लव ऑफ टी। बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जब भी किसी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को यूज करते हैं, जैसे द मॉर्निंग ऑफ हर एग्जाम और द वीक बिफोर लास्ट एंड द प्रीवियस इवनिंग। फॉर कॉर्डिनल नंबर के साथ हम यूज़ करते हैं द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड स्टेप। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अभी ओमिशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल को देखेंगे बच्चों, कहाँ कहाँ हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते, जैसे दिस कैंडेलियर इज मेड ऑफ, और ग्लास को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल द ग्लिटर दैट इज नॉट गोल्ड, देखिए ये सब क्या है बच्चों, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन। आई यूज पेपर, आई यूज पेपर। अब यहाँ पे हम एक पेपर दो पेपर को नहीं बताएंगे, ठीक है। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन इट इज preceded by other determiners like some, any, other, every, either and neither. There is another book, either player, each student, you can choose any necklace, इधर हम यूज़ नहीं करते हैं। देन आफ्टर इट इज़ इन नेम ऑफ द मील, किसी भी मेल के साथ, मील के साथ, इट मीन्स जब भी हम भोजन की बात करते हैं हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, ए और एन को यूज़ नहीं करते हैं। देखिए डिनर के साथ कोई नहीं है, ब्रेकफास्ट के साथ कोई नहीं है, ठीक है। वी यूज़ आर्टिकल्स टू रिफर्स पर्टिकुलर मील, लेकिन कुछ ऐसे मील्स हैं जैसे अ लंच एंड एन अर्ली डिनर, यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब दो को कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, तो द इज़ नॉट यूज इन द फॉलोइंग प्लेसेस, जैसे किसी भी इंडिविजुअल मॉन्यूमेंट के साथ दो को यूज़ नहीं कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे दो का यूज़, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे। लिखा इज प्लानिंग टू क्लाइंब द माउंट कैलाश, नहीं गलत है, यहाँ पे दो को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ माउंट कैलाश लिखेंगे, ठीक है। Regions which have a cardinal directions in the name, Northern Asia and South Asia, ठीक है, इन डायरेक्शन के नेम्स के साथ दिया हुआ है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, तो वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। When talking about the plural nouns or uncountable sound in general sense, so Spanish, that is what it is used as a noun in general sense, ठीक है। She is learning Spanish online, okay. Is there any milk left in a refrigerator? ये स्टडीज इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दो का यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, मील्स, डेज ऑफ द वीक, सिटीज, कंट्रीज एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है, इनके आगे भी और दो को नहीं यूज़ करेंगे। बिफोर स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल्स, प्रिजन, पार्लियामेंट, व्हेन दे perform their primary function for which they have been treated or created. He goes to lunch, he goes to church, he went to prison, ठीक है। इनके ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप इसको देखते रहिए। We use definite article when we denote the place was visited for other purpose, ठीक है। She went to the church to meet the priest, ये एक अलग पर्पस से जा रही है, वो चर्च जा रही है, प्रार्थना करने नहीं जा रही है बल्कि प्रीस्ट से मिलने जा रही है, तो यहाँ पे दो का यूज़ किया गया, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊँ, शी गोज़ टू चर्च ऑन संडे, ठीक है, वो संडे को चर्च जाती है, तो चर्च क्यों जाती है, उसका पर्पस होता है प्रार्थना करना। तो जहाँ पे वो चर्च जो है वो प्रार्थना करने के लिए ही बना है बच्चों, तो वो चर्च जो है वो प्रार्थना करने के लिए बना है, तो दैट वाज
दिस चर्च वॉज क्रिएटेड विद क्रिएटेड फॉर द प्रेयर। ठीक है, तो उस प्रेयर के लिए, उस क्रिएटेड थिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको द आर्टिकल को यूज़ नहीं करना है। बट यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जो उसका जो पर्पस है वो प्रीस से मिलना है, ना कि वहाँ पे पूजा करना है। तो दैट इज़ वाई आर्टिकल्स का यूज़ किया गया। माई मदर वेंट टू द स्कूल टू स्पीक टू माई प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल से मिलने जा रही है, ना कि पढ़ने जा रही है। दैट इज़ वाई आर्टिकल्स को यूज़ किया गया यहाँ पर। रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल कहाँ का यूज़ करते हैं, देखिए, वेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिटी ऑफ the same now the same article is placed before the same adjective. I picked a white and a blue shirt। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दो या दो से, जहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात की जाती है। आई पिक्ड, क्या चीज़ मैंने पिक किया, एक शर्ट पिक किया जो वाइट और ब्लू में है। ठीक है, ये हम वर्ब्स को सॉरी आर्टिकल को रिपीट कर रहे हैं बच्चों। व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिटी और टू डिफरेंट नाउन द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर बोथ, दोनों के बीच में यूज़ करेंगे। आई पिक्ड अ वाइट एंड अ ब्लू शर्ट। ठीक है, when two or more noun refers to the same person or things, the article is placed before the first noun। पहले नाउन के साथ यूज करेंगे। द प्रिंसिपल एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये दोनों एक ही हैं, तो गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ ना यूज करके प्रिंसिपल के साथ यूज किया गया है। द ऑथर एंड प्ले राइट, तो एक ही बंदा जो ऑथर भी है और प्ले राइट भी है, तो हम जो पहला एडजेक्टिव है उसके साथ उसको यूज करेंगे। ठीक है, जो पहला नाउन है। तीसरा पॉइंट देखिए, when two or more nouns refers to the different people or things, the article is placed before noun both। अब वो नाउन्स जो डिफरेंट पीपल को शो करता है इन कंडीशन में, दोनों के साथ यूज करेंगे। द प्रिंसिपल एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, विल एड्रेस द कमिटी। अब देखिए, व्हेन टू और मोर नाउन्स, यहाँ पे दो नाउन्स है, ये एक नाउन, ये प्रिंसिपल एक बंदा दूसरा है, और द गेस्ट ऑफ ऑनर कोई और है। ठीक है, वो सेम पर्सन नहीं है। वैसे द ऑथर एंड द प्ले राइट विल बी होस्टिंग द पैनल ऑफ सीजन द एडिशन एडिटर्स। ठीक है, यहाँ पर भी टू पर्सन की बात की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो यूसेस ऑफ आर्टिकल्स के आपको समझ में आएंगे। एक एक्सरसाइज है, देखने एक्सरसाइज को। ए एन और दा को यूज करना है बच्चों। तो श्रीलंका इज अ हाफ आवर बाई एयर, तो एयर के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए। दूसरा देखते हैं, शी रिसीव्ड एन, पहले तो एन लगा दीजिए, एन इन्विटेशन टू मीट अ प्रेस्टिजियस इवेंट इन द सिटी। ठीक है, अब देखिए, ही फिनिश्ड 3 स्केचेड इन एन आर। ठीक है, अभी फोर्थ की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ, द लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन। इंग्लिश लैंग्वेज एक जनरल सेंस पूरे क्लास को बता रहा था यहाँ पे। द का यूज करिए। द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। फिफ्थ देखेंगे, ही इज रीडिंग अ चैप्टर अ डे टू इम्प्रूव हिज लैंग्वेज स्किल। ठीक है, एक चैप्टर एक दिन में उसने वो पढ़ती है अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, I have little hope that Faizan will submit his copy to this panel, said Mr. Ghosh। तो यहाँ पे बहुत कम होप की बात की जा रही, ना के बराबर तो कुछ भी यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल जीरो आर्टिकल यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन सेवेंथ, दे लिव्ड इन एन अपार्टमेंट ऑन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मिस्टर जॉनसन सेड दैट ही विल टेक द मीटिंग ओवर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सिक्स देखेंगे, ही इज द is the only boy in a family of 6 siblings। Can you pass me? Okay. Can you pass me the salt, please? तो ये तो है बच्चों आपका एक्सरसाइज ये। Now let us move towards the next exercise. Exercise B. Choose the most appropriate option. Ravi is an accomplished musician। ठीक है। सेकंड है, एड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नहीं होगा, द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। ठीक है, और स्मार्टफोन इज एन इसेंशियल टूल फॉर द मॉडर्न कम्युनिकेशन। एक स्मार्टफोन की बात हो रही है। ठीक है, फोर्थ, आई हैव अ फ्यू मिनट्स वेटिंग वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री। सिक्स देखेंगे, हैव यू सीन द डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, किरण एंजॉयज स्टडिंग साइंस बट ही फाइंड्स फिजिक्स पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग। ठीक है, एट्थ देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे, और बिगेस्ट चैलेंज नहीं होगा, द बिगेस्ट चैलेंज, और इट हैज़ बीन अ ईयर
और द ऑनर ऑफ रिसीविंग, यहाँ पे द होगा। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज सी को देखेंगे। ठीक है, द ताज महल इज इन आगरा। We will stay at the hotel park. My sister studies at the University of Delhi. I will never forget the summer I spent. ठीक है, तो ये इसके आंसर रखे हैं। अब जो पैसेज है बच्चों, मैंने पैसेज को यहाँ पे सॉल्व किया है, आप ये देख लीजिए। तो ये जो आंसर्स है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये आंसर्स, ठीक है, ये जो सी के आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और एक्सरसाइज डी का जो पैसेज है वो यहाँ सॉल्व किया गया है। देखिए आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है, this is the answers of the passage. Okay students, ठीक है। और अभी जो दू का एक्सरसाइज जो दूसरा है, दूसरा पैसेज जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, इसका आंसर पैसेज दूसरे पैसेज का आंसर। So students, in this way we have completed chapter 4. This is that is article. I hope that all the assignment and exercises that you have been or you might have been got by your teacher, that will be help to complete the assignments. So मिलते हैं next video में। Till that time student, thank you and have a nice day.